नाउ 11th और 12th क्वेश्चन देखते हैं. एंड द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस. ठीक है, सो फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस वी रिक्वायर हाई करंट एंड लो वोल्टेज. हाई करंट एंड लो वोल्टेज फॉर आर्क वेल्डिंग we require high current and low voltage to make connection for electrode. ठीक है, सो अगर हमारे पास दो तरीके के जनरेटर हैं, अगर आपको याद हो. फर्स्ट वन इज योर the series generator, and the next one is your compound differential generator. Clear hai? So just the series generator is giving the constant current. This is your constant high current after the rated value. But your differential compound gives the constant current before the rated load. And this is high load, so high current and low voltage region. So it is best choice for arc welding. So अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले अगर कहीं प्रेफरेंस आ जाए, then you have to give the preference for the differential one. अगर ऑप्शन में डिफरेंशियल और सीरीज है, then you have to give the option for differential first. Then the second choice is for series one because both are suitable, but you have to give in choice for differential. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर इज ऑलवेज. सो अगर ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर की बात करें या हम कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं सारे, so we have the voltage regulation like that. We have the voltage regulation like that. First we are having under compound, then we have level compound, and then lastly we have the over compound. This is over, flat or level, and this is what under. So this is giving voltage regulation negative because V full load is greater than V no load. Here V full load is equals to V no load, so voltage regulation 0 or flat. Here V full load is less than V no load, so voltage regulation is positive. ठीक है यहाँ तक. तो चेक कर लीजिए, the voltage regulation of an over compound DC generator is always what? It is negative. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. 13-14. Most commercial compound DC generators are normally supplied by the manufacturers as over compound machine because first option, they are ideally suited for transmission of DC energy to remotely located loads. Second option, a degree of compounding can be adjusted by using a diverter across the series field. Next, they are most cost effective than the shunt generator. Next, they have the 0% रेगुलेशन. ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, देन वी विल फाइंड द ऑप्शन. नाउ अगर हम बात करें जो कंपाउंड जनरेटर है उसमें रेगुलेशन जो है 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये ऑप्शन गलत है. दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव देन द शंट, गलत बात है क्योंकि शंट में सिर्फ शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, बट जो कंपाउंड है इसमें दोनों वाइंडिंग है, सो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. सो C option is also wrong. Now they are ideally suited for the transmission of DC energy to remote located loads. नहीं, ये ऑप्शन हो सकता था सही, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंडिंग, अंडर कंपाउंडिंग, फ्लैट और लेवल कंपाउंडिंग और ओवर कंपाउंडिंग. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जो फ्लैट कंपाउंडिंग और अंडर कंपाउंडिंग, दे आर सुटेबल फॉर स्मॉल बिल्डिंग और ऑफिसेस वेयर द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस. Clear? So it may be suited, but if you see the degree of compounding, the B option, degree of compounding can be adjusted by using a diverter across the series field. That means a diverter resistance can provide either the under or the flat or the over compounding with the help of the values changing from minimum to maximum. So it is best choice. If you have the over compounding, then you can have the under compounding as well. But if you design your generator as
under compounding, then you are getting difficulties to make your generator from under compound to over compound. That's why the manufacturer provided your DC compound generator as over compounded generator as compared to the under or flat compound. So for this question the correct option is B. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सीरीज फील्ड ऑफ ए शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय एक्सटर्नल करंट, आर्मेचर करंट, शंट करंट एंड लास्ट वन इज लोड करंट. तो देखते हैं इसका डायग्राम क्या होगा. अगर मैं शॉर्ट शंट की बात करूं तो शॉर्ट शंट जनरेटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है दैट इज आउटसाइड द आर्मेचर, दैट इज आउटसाइड द आर्मेचर. सो इट इज इन सीरीज विद लोड, सो इट इज योर लोड सर्किट. ओके, सो इफ यू सी द डायग्राम, दिस इज योर EG, then it is IA, then it is ISH, then it is ISE, and this is also IEL, that is VL. So in case of short shunt compound generator, the series field winding is excited by load current, because ISE is equals to IL. But in case of what? In case of your long shunt compound generator, this series field winding is excited by what? Armature current, because in that question, in that the ISE is equals to I. So it is for short and it is for long shunt. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? लोड करंट. ठीक है, यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now 15 और 16 क्वेश्चन देखते हैं. द गिवन फिगर इज द कनेक्शन डायग्राम फॉर शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट और सीरीज, एंड लास्ट वन इज कंपाउंड. नाउ बड़ा सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को पहचानने का. अगर किसी भी जनरेटर में शंट और सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग एक साथ है, देन दैट जनरेटर इज नोन एज कंपाउंड जनरेटर. एंड इन दैट कंपाउंड जनरेटर वी हैव टू क्लासिफिकेशन, क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि क्यूमुलेटिव है या डिफरेंशियल है. अगर यहां पर डॉट्स बना दें, we are just creating dot, then it is cumulative. Now if we are having a dot like that, this is dot like that, then this is called differential. क्लियर है. अब चेक कर लेते हैं ये लॉन्ग शंट है या कि शॉर्ट शंट है. अगर आर्मेचर वाइंडिंग जो है सॉरी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर से आउटसाइड है या लोड के साथ सीरीज में है तो इसको शॉर्ट शंट बोलते हैं. इफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज इन सीरीज विद आर्मेचर देन इट इज लॉन्ग शंट. सो ये जो एग्जांपल दे रखा है, ये दे रखा है शॉर्ट शंट का. किसका दे रखा है? शॉर्ट शंट का. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बेटा क्या सही होगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन. इन विच टाइप ऑफ द कंपाउंड जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज राइजेस विद द एप्लीकेशन ऑफ लोड सो दैट इट्स फुल लोड वोल्टेज एक्सीड इट्स नो लोड वोल्टेज. तो सारे ऑप्शन जो लगभग दे रखे हैं वो कंपाउंड जनरेटर के दे रखे हैं. तो अगर हम कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम बनाते हैं VT versus IL के लिए, so we have three types of generator. The first one is called under, then the next one is called your level compound. So it is level compound is passing through the exact point. ठीक है, so this is your level or flat compound. Now next one is what? Your over compound. So in case of over compound, the terminal voltage exceed no load voltage for a long duration. Here VT full load is very greater than VT no load for long duration, because here the flux strengthening effect exists for the long duration. हालांकि इन तीनों में अगर मैं ओवर, फ्लैट और अंडर में बात करूं, यहाँ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए VT फुल लोड जो है नो लोड से बड़ा होगा, यहाँ उससे ज्यादा देर के लिए, और यहाँ सबसे ज्यादा देर के लिए जो VT फुल लोड है वो नो लोड से ज्यादा होगा. तो जो बेस्ट चॉइस है हमारे पास वो कौन सी है? ओवर कंपाउंड. ठीक है यहां तक. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं 17 और 18 क्वेश्चंस. नाउ व्हेन द सीरीज फील्ड इज सो कनेक्टेड देन इट्स एम्पीयर टर्न एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दोस ऑफ शंट फील्ड द जनरेटर इज सेड टू बी. सो अगर हम किसी शंट जनरेटर में एक सीरीज फील्ड ऐड करते हैं और वो सीरीज फील्ड का जो एम्पीयर टर्न है और फ्लक्स है अगर शंट फील्ड में ऐड होता है देन इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डीसी जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर. अगर ये सीरीज फील्ड जो है शंट जनरेटर में सब्ट्रैक्ट होता है देन इट इज कॉल्ड
डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो क्या होगा, इफ दिस सीरीज फील्ड और एम्पीयर टर्न इज एडेड टू द शंट देन इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, और इसी के साथ अगर ये जो सीरीज फील्ड है इफ इट इज सब्ट्रैक्टेड टू द शंट फील्ड और एम्पीयर टर्न देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, यहां तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या सही होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन हमारे सामने है। ए डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर हैज इट्स सीरीज एंड शंट फील्ड providing 20% and 80% flux respectively. The series field winding is suddenly short circuited without changing the load, then the terminal voltage ignoring all the resistances. First option remains same, reduces by 20%, increases by 20%, and last option is reduces by 80%. Now अगर इस क्वेश्चन को समझते हैं तो हमें याद है जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है उसमें जो Eg होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू phi sh माइनस phi se। ठीक है, यहां तक। Now the phi sh is 80% and phi se is what, 20%. So Eg1 is what, 80 minus 20 that is 0.6। ठीक है, यहां तक। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अगर सीरीज फील्ड को शॉर्ट कर दिया जाए देन इन द नेक्स्ट कंडीशन phi se is 0, then Eg2 is what, phi sh minus phi se, and phi se is 0, then it is directly proportional to what, 0.8. Now in case of differential compound motor, generator, if the series field winding is short circuited then the generated EMF is increases because this is earlier it is subtracting from the shunt field winding. That's why if it is short circuited then their generated EMF will increases। ठीक है, तो अगर यहां से देखें जब पहले कंडीशन थी तो ये 0.6% था, अब अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है देन इट इज इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट, पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑप्शन देखना है कि जिसमें इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए इंक्रीज होने के हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो गया, और रिमेन सेम का भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपने आप एक हमारे सामने ऑप्शन आ गया इंक्रीजेस बाई 20%। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर है उसमें अगर आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है तो डेफिनेटली आपका जो ईएमएफ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है यहां तक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आ गया है वो कौन सा निकल के आ गया है, सी आ गया। ठीक है यहां तक।